Good morning, everyone. So talk about let's talk about the one more important topic of the organic synthesis, that is the functional group transformation. And in functional group transformation, so we are interested in converting one functional group to other, and for that purpose, you need to know about the reagents, right? Reagents are the chemical species or chemical moieties that are prepared in the laboratory for the purpose of functional group interconversion, maybe addition, maybe elimination. And for that you need to require a specific reagent like oxidizing agent, reducing agent, and lastly what, the organometallics. From that, today we're going to focus on the very interesting part of the organic synthesis, that is the organometallic chemistry now. So I welcome you. Now, what are the organometallic compounds? Organometallic compounds are those compounds having at least one carbon metal bond. The compound should contain at least one carbon metal bond, that going to called as a organometallics. So this organometallic, the word which is originated from the carbon. Organo means it is a carbon moiety, and the metallics means it is belongs to the inorganic family, one can say. So organometallic is a bridge between what, the organic and inorganic. So you know that metals are electropositive. जैसे पता है हमको कि मेटल क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. एंड कार्बन इज, इफ यू कंपेयर विद द मेटल, कार्बन जैसे इट इज electronegative. So that's why the electronegativity of the carbon is 2.5. And so results in this carbon metal bond is ionic in nature. Now अगर कोई कंपाउंड आयनिक है या कोई बॉन्ड अगर आयनिक है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. Higher the difference, higher will be the polarity. Higher the difference, higher will be the what? Polarity. Okay. If the difference is high, then results in the higher polarity. If polarity is high, then the reactivity of the system is also what? Higher, and such compounds are unstable. Okay. So और ये पोलैरिटी का जो डिफरेंस है कैसे हम निकालते हैं? पोलैरिटी का जो डिफरेंस है ये निकाला जाता है बेस्ड ऑन दी कार्बन मेटल बॉन्ड. Okay, and basically it is depends upon the difference in their electronegativities. If the carbon metal bond, let's say lithium अगर हम कंसिडर करते हैं, तो लिथियम और कार्बन का डिफरेंस जो रहेगा उस हिसाब से उसका पोलैरिटी डिसाइड किया जाएगा. ओके, नाउ सी दिस organometallic compounds are basically having carbon metal bond, and we have various different types of metal. आपको पता है कि जैसे S ब्लॉक में भी मेटल्स प्रेजेंट है, P ब्लॉक में है, D ब्लॉक में. सो बेस्ड ऑन दैट उसके हिसाब से हम अलग अलग ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड्स अवेलेबल आज हैं, राइट. लेट्स से कार्बन मैग्नीशियम, दैट इज ऑर्गेनो मैग्नीशियम जिसको हम बोलते हैं. कार्बन लिथियम, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनो लिथियम. देन फ्रॉम पी ब्लॉक हम बोरॉन भी ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, सिलिकॉन है हमारे पास, टी द टीन इज देयर. From D system we have iron, zinc, copper, nickel, chromium, then rhodium, then palladium, and so many examples we have. Okay, और इसीलिए अलग अलग कैटेगरी से जो मेटल हम यूज करते हैं, इन सब का अलग अलग क्या रहेगा, रिएक्टिविटी रहेगा, और रिएक्टिविटी के बेस पे हम उसकी सेलेक्टिविटी भी डिसाइड कर सकते हैं. सो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है ना, इनका काम क्या होता है, दे आर बेसिकली यूज पर्टिकुलरली फॉर द टू पर्पस. ठीक है, अब इसके दो पर्पस क्या हो सकते हैं, दैट वी हैव टू कंसिडर नाउ. अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सो जो कार्बन मेटल बॉन्ड होगा आपका, दैट इज अ पोलर, क्योंकि मैंने हमें अभी अभी हमने देखा है कि द कार्बन मेटल बॉन्ड इज पोलर. यू कैन सी हियर नाउ. ओके, अब कार्बन मेटल बॉन्ड अगर पोलर है, मीन्स कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट मस्ट बियर द नेगेटिव चार्ज, और जो आपका मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इट विल बियर द पॉजिटिव चार्ज.
अब ये जो कार्बन है, हमको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हेनेवर कार्बन इज नेगेटिव चार्ज मींस इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या बन गया वो? इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ये या तो हम उसको एज ए न्यूक्लियोफाइल बोलकर यूज कर सकते हैं, और अगर आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो कार्बन है एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, सो इसका मतलब इट विल बी यूज फॉर द सीसी बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन। दूसरा पर्पज ये होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसका मतलब या तो वो न्यूक्लियोफाइल बोलकर यूज होगी या तो फिर वो क्या होगी आपकी एज अ बेस, यानी कि फॉर अब्स्ट्रैक्टिंग द प्रोटॉन, यानी कि वो होगी आपके सो टू टेक द प्रोटॉन H प्लस आयन लेने के लिए वो जनरली यूज होगी। सो इसीलिए जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ना, इनके मेन दो पर्पज होते हैं। एक तो सबसे पहला पर्पज है इसका एज ए न्यूक्लियोफाइल, यू कैन यूज एज ए सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा जो है वो एज ए बेस का उसका एक एप्लीकेशन रहेगा। नाउ यू कैन सी दिस रिएक्शन। नाउ सपोज आई हैव अल्किल हैलाइड, यू नो दैट अल्किल हैलाइड्स आर पोलर बिकॉज ऑफ व्हाट माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। उस हिसाब से आपका कार्बन जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा एंड दैट हाइड्रोजन विल बी नेगेटिव। means your R और means your carbon is electrophilic in nature। कार्बन क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। इफ आई यूज दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हियर एज ए रिएजेंट, अगर मैं इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज ए रिएजेंट लेता हूं तो क्या होना चाहिए? सो दैट नेगेटिव चार्ज ऑफ द कार्बन is going to be react onto the electrophilic carbon, so this is nucleophile। so nucleophilic carbon and electrophilic carbon, these are two different। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मतलब होना है कि आपका कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच होगा, और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन मतलब वो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को अटैच होगा, लाइक हियर। ओके, नाउ सी द रिएक्शन विल बी लाइक SN2 मैनर एंड सो दैट विल फॉर्म द कार्बन कार्बन बॉन्ड। सो दैट्स व्हाई whenever organometallic compounds are used for the CC bond forming reaction, that means they are used as a nucleophile। दूसरा हो सकता है कि हम उसको एज ए बेस यूज कर सकते हैं। सपोज रिएक्टेंट आपका कोई एसिडिक मोइटी प्रेजेंट है, रिएक्टेंट में आपका कोई एसिडिक फंक्शन प्रेजेंट है, लेट्स से आई हैव यूज्ड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नाउ यू नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड मींस इट इज अ एसिडिक इन नेचर, सो दैट कार्बन नेगेटिव जो है आपका वो अब यहाँ पर जो है वो सिंपली क्या करेगा? प्रोटॉन को लेने का काम करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस organometallic compound is generally used as a base here। so most अगर एसिडिक रिएक्टेंट होगा तो बेस का काम करेगा। so these two things should be keep in a mind while considering the organometallics। so basically organometallics का काम क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक का काम ये है कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स आपके जो कंपाउंड्स होते हैं ये इनका सबसे पहला काम होता है कि एज ए न्यूक्लियोफाइल। दैट्स व्हाई वी कैन डेवलप लॉट्स ऑफ रिएक्शंस पर्टिकुलरली रिगार्डिंग दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मिंग रिएक्शन से, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से, कई सारे रिएक्शंस हम कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर व्हाट अबाउट दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिंपली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हम पहले देखेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस ऑर्गेनोमेटेलिक सिस्टम। सबसे पहला तो ये होता है कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, व्हाई हाउ दे आर यूज पर्टिकुलर। एक तो ऐसा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम वो कंपाउंड स्टडी करते हैं जिनमें एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन। दैट कंपाउंड इज गोइंग टू कॉल्ड एज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्या यूज होता है कि मेटल आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दिस विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो कार्बन नेगेटिव मीन्स इट इज अ सोर्स ऑफ हॉट न्यूक्लियोफाइल। कार्बन नेगेटिव क्या हो गया? इट इज अ सोर्स ऑफ हॉट न्यूक्लियोफाइल। और अगर ये सोर्स ऑफ हॉट न्यूक्लियोफाइल है तो हम इसको क्या यूज कर सकते हैं? इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। सो दिस इज यूज पर्टिकुलरली फॉर मेकिंग दी कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्योंकि कोई देखो, हमको ये पता है कि किसी भी सिस्टम में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाने का जो एक रूल है, ये नेचर का रूल है। सिमिलरली हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आपके पास है, सो वो ऑब्वियस बात है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरफ ही जाएगा। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमको न्यूक्लियोफिलिक कार्बन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दे गोइंग टू बी रिएक्ट ऑन टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो ऑर्गेनोमेटालिक्स है। वी हैव टू जस्ट पुट द वर्ड फ्रॉम द मेटल। जैसे लिथियम होगा तो वो ऑर्गेनोलिथियम हो जाएगा, मैग्नीशियम होगा तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हो जाएगा, बट डिपेंड अपॉन द वैलेंसी। अब जैसे लिथियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, तो उसके साथ क्या हो सकता है? उसके साथ हम एक ही कार्बन मोइटी हम अटैच कर सकते हैं, लाइक RLi और लाइक PHLi। तो अब ये क्या हो जाएगा? अल्काइल लिथियम, लेट्स से मिथाइल लिथियम,
फिनिल लिथियम, ओके, वगैरह, इथाइल लिथियम, एन ब्यूटाइल लिथियम, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम, ये सब हम वहाँ पे कर सकते हैं. बट इफ आई पुट मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम इज बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप एलिमेंट. सो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2. सो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? RMgX, दैट इज मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सो लाइकवाइज हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं. ओके, आ रहा है समझ में आपके? So how this organometallic compounds are basically used in organic synthesis? So they are used for the two purpose. One is used for the nucleophile and second is what the used for the base. Now let's move on to the physical property of what organometallic compounds. Generally पता है आपको कि अगर हम organometallic compounds यूज कर रहे हैं, इसका मतलब we are directly using metal. क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? मेटल. और मेटल आपको पता है, मेटल जनरली रिएक्टिव होते हैं. और मेटल की रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड की जाती है? आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट. उसके बाद थोड़ा डी वाला आते हैं, थोड़ा इसमें आते हैं, राइट. सो इसीलिए जब भी हम मेटल यूज करते हैं तो इनकी जो रिएक्शंस होती है ना, ये किस सॉल्वेंट में लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पे, राइट. सो जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ये हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम इसको जनरली नहीं रख सकते, राइट. क्यों नहीं रख सकते इसको? क्योंकि उसमें स्पेशली हम क्या बोल सकते हैं इसको कि हाँ हाँ, ऐसा ऐसा होता है कि देखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बेसिकली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे सॉल्वेंट पे हमको रखना है. अब चाहे सॉल्वेंट कोई भी यूज करो, जनरली उस सॉल्वेंट में आपका ऑक्सीजन ना हो, राइट. स्पेशली अगर हम वाटर की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, अल्कोहल की बात करेंगे, सो जनरली क्या होता है कि दैट मेटल इज गोइंग टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ना. और इसीलिए जब भी हम मेटल यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड स्पेशली हम एस ब्लॉक की यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम दो कंडीशन मेंटेन करते हैं. एक तो कंडीशन होती है सबसे पहले ड्राई एनवायरनमेंट. आपका क्या कंडीशन है? आपका ड्राई. ड्राई का मतलब क्या होता है? इन ऑब्सेंस ऑफ बॉडी वाटर, राइट, और ऑब्सेंस ऑफ बॉडी मॉइस्चर. और एक होता है आपका इनर्ट कंडीशन. वी हैव टू आल्सो मेंटेन द इनर्ट कंडीशन. अब इनर्ट का मतलब क्या हो गया कि ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ना हो. क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली oxygen is a most reactive gas now, so it can easily combine with your metal and so your reagent will be destroyed. okay, so एक चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि, और इसीलिए देखो आपने देखा होगा कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, so they generally kept in the kerosene now, right, because they don't have oxygen. so that is the one thing you have to keep in mind. स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, so सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर especially we can develop this carbon and metal bond, so they have just a sigma bond in between them. okay, so CM इसको हम या MC bond इसको बोल सकते हैं. इसकी जो मेन रिएक्टिविटी है ये किसकी वजह से आती है? बिकॉज ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर. अब आयोनिक कैरेक्टर कैसे आता है वो भी हम इसमें यहाँ पे मेंशन करेंगे. मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव while this will be the electronegative. okay, this is the very simple and very clear cut discussion about that organometallics. There are very polar molecules, and you know that the polarity of this bond is due to what? The electronegativity difference between them. okay, so electronegativity difference जितना ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे. okay, okay, so next to that, so see the electronegativity is there with respect to their particular elements. अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1. कितना है इसका? 2.1 दिया हुआ है. and if we compare with this carbon, it is a 2.5. so difference is almost 0.4.